Hi everyone. Hi, ma'am. Hello students. Hello everybody. So good to see you all after so many days. I think two classes we have missed, 23 classes. So can I see you? Hi Alina. So for me it's morning. So good morning. And for you it's good evening. Hello, ma'am. Hi Ria. Hello dear. How are How you are you, all? ma'am? I'm good. Very I'm good. fine. Okay, that's What good. about you? I'm good, Ria. So, Ria, you were the first one in this group to do the test, huh? Yes, ma'am. Yes, and I was so happy. Alina, did you try it? I think you have also done it. And where are others? Please ask them in the group to join fast. Guys, please ask your friends to join fast. We'll start the class now. Okay, start करें हम लोग. Shall we start? Okay, if they want, they will join. Okay, guys. So first of all, जो हम लोगों ने टेस्ट किया था, the test that you all attempted, एक बार ही open the test, everybody, because उसके no, why we will revise the test and through which we are going to revise everything that we have done so far. For example, we have covered the nouns, we have covered the simple tenses as well when it comes to past and present. It will be a quick revision. Hi, Deepika. Hi, ma'am. Thank you so much for cooperating, guys. Thank you so much. It means a lot. I mean, it's a big thing that moving from one country to another, and that too where the time is just opposite. Like for me right now, it's morning 8 a.m. Right, and for you it's evening 6 p.m. So it was very difficult for me for to manage these first 2 days in Canada. But now I'm completely fresh and active, and we'll be conducting your classes like today, and we'll have your class tomorrow as well. Will that be fine? To like at least for 1 week we'll have classes every day, so that जितना हम लोगों ने थोड़ा बहुत एक वो rhythm टूटा है हमारा, we can get back to the zone, right? Will that be fine for all of you? All right. So let's get started. First of all, open your tests that you people did. We will revise. We will revise all the answers. All right. I want you all to open the test along with your answers. One by one, we will start revising all the questions. Now, first of all, how many marks did you all get? Just tell me. कितने नंबर आए आप सब लोगों के? मैम मैंने टू एक्सरसाइज मैंने मेरी नहीं की हुई थी मैंने 5 एक्सरसाइज की थी ओनली Okay, and which two exercises you couldn't do, Arina? मैम मैं उस टाइम फ्री नहीं थी फिर अभी तक मेरा वही हुआ है That's fine, but I'm asking which two exercises you couldn't do. विश टू एक्सरसाइज नंबर 8 या 7 आई लेफ्ट Just आई eight remember and seven. So exercises 8 and 7 were about, 8 was about simple verb tenses quiz, and seventh was also about simple verb tense. All right. yes Okay. All right.
Cool. Now everybody tell me your grades, tell me your marks that you people got, please. My 48. Yes, guys. Okay, Ria, what was your score? Your mic is off. I scored 64 out of 80. Oh, very good. Clap for Ria, everyone. That's not a bad score at all. So, Ria, आपने जो marks gain किया, which was the topic that you found confident, like yourself confident in? कि हाँ इसमें मेरे नंबर नहीं कटे हैं. एक मिनट देखो. हाँ जी, और आप मुझे ये भी बताइए एनालाइज करके विच आर द टॉपिक्स दैट यू लॉस्ट द मार्क्स इन. सेम फॉर अलीना. अलीना आप भी मुझे बताएंगे एंड फॉर दीपिका यू टू. थोड़ा सा एनालाइज करके आप लोगों ने समझा होगा दैट व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू फाउंड डिफिकल्ट जिसमें आपके नंबर कट हुए. मैम पास्ट ऑफ द स्पीच तो मुझे समझ में आएगा, पर उनके अंदर जो एक पॉइंट है ना, वहाँ मेरे मार्क्स से कट हुआ है. Okay, okay. So, Alina, today's class is about a kind of revision, and then we will start the next topic, right? So, next topic start करने से पहले, I want you to just like after, at the end of this class, I want you to give a short speech on this thing. जो आप कह रहे हो कि आपको समझ आ गया है, like present simple, past simple, but उसमें कुछ confusion है, you know, when you go deep inside. अभी उसमें what you have to do, आपको सिर्फ एक छोटा सा 1 minute 2 minute का स्पीच देना है at the end of this class in the second half, which will help me to understand what have you like comprehended about this entire topic and what are the things that confuse you, so that I can, you know, polish it away for you. So Ria, what are the topics for you, dear, that you found difficult? Second exercise. Second exercise, okay, let me see. The second exercise was about, okay, identification of the type of nouns. All right. So when you talk about the identification of type of nouns, Ria, I think common noun आपको easily पता लग गया होगा, proper noun पता लग गया होगा, right? Collective noun is also very easy. It's a group. So what kind of noun did you find very difficult to identify और उसमें आपके आंसर गलत हुए? मैम सिर्फ एक एक्सरसाइज में नहीं गलत हुई है, सभी में 2 2 3 3 से ऐसे टोटल बना. Okay. सबसे ज्यादा सेकंड एक्सरसाइज में गलत हुई है. अच्छा, सेकेंड एक्सरसाइज में. ओके, तो हम एक एक करके तीनों सारी एक्सरसाइजेस रिवाइज करते हैं गाइस. दीपिका, आई वांट यू आल्सो टू टेल मी, आपको कौन से क्वेश्चंस में डिफिकल्टी हुई दीपिका? योर स्कोर वाज फाइन दीपिका, व्हाट वाज योर स्कोर? I did mistake in second exercise. I wrote only noun, मतलब not mention it's a proper noun and it's a common noun at 5 places. That's his mistake. And ma'am, in all exercises, I mistake in 4th, 3rd, 2nd and 8th exercise, only one mistake in each. Oh, very good Deepika. So what was your total score? मैम अभी वो कॉमन, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि कॉमन वाले जो नाउन का उसको भी गलत माना जाएगा या फिर उसको राइट रखेंगे. सो ओके, कॉमन वाले नाउन का मतलब थोड़ा सा कुछ इलैबोरेट नहीं मैम, मैं आपको व्हाट्सएप किया था कि ओनली नाउन मतलब लिख दिया मैंने, उसमें प्रॉपर मेंशन नहीं किया इट्स अ कॉमन नाउन और इट्स अ प्रॉपर नाउन. Yes, but here in exercise 2 the question says identify the type of noun. Yeah, it doesn't say identify the noun. Identify the type of noun. तो अगर आपने type of noun identify नहीं किया है then it will be 0. मतलब every point is for one mark.
तो मैम अगर वो सच में, हाँ, टोटल मार्क्स इज 80, तो माय स्कोर इज 71 अरे वाह, टॉपर ऑफ आवर क्लास. Good, very good. Okay. Now let's revise all the questions. Quiz number 1 पे आ जाएंगे सब लोग. इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क मी. मैं सारे नहीं पढ़ूंगी, इट विल वेस्ट टाइम. आप खुद मुझे बताएं कौन सा क्वेश्चन यहाँ आपका गलत हुआ था. क्या आपको समझ आया, अपनी गलती को समझ आया आपको? एक्सरसाइज 1, जस्ट एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज 1 मैम. मैम इसमें सेकंड क्वेश्चन, यस. I will girl and state 2. Okay. Yeah, so find the common noun in the following sentence. The girl arrived in the state last week. Yes, girl is the common noun here. Yes ma'am. Yes, it's right. बट मैंने स्टेट भी साथ में दोनों किया था. Okay, okay. State last week. अच्छा, आपने ऐसा किया. नहीं, लेकिन ऑप्शन में वो है नहीं ना. ऑप्शन में तो you only have to select one. हाँ 1, तो फिर मैं मुझे लगा स्टेट भी आ सकता है, तो मैंने दोनों लिख. No problem, no problem. Next, any other confusion? रिया के साथ. और मैम 9th में 9th? Okay, find the proper noun. Yes, find the proper noun in the following sentence. So, Alina, proper nouns are names of like particular things or people, right? Or designations. For example, I named my cat Lucy. So here, cat is a common noun. I is a pronoun. Named is a verb. My is a pronoun. So, bacha Lucy. Lucy is your proper noun. It names a particular cat. कैट एंड लूसी दोनों मैम, बोथ के 1. बच्चा कैट जो है ना, इट इज अ कॉमन नाउन. कि आपके पास भी कैट है और आपके फ्रेंड के पास भी कैट है, लेकिन आपकी वाली कैट की ही बात हो रही है यहाँ पे लूसी कह के. तो स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग एंड वी नेम दैट थिंग और पर्सन, दैट्स व्हेन वी कॉल दैट नेम, दैट स्पेसिफिक नेम, अ प्रॉपर नाउन. ओके, ओके मैम. एंड 10 and 10th, okay, the 10th one is find the abstract noun from the following sentence. Now as I told you all, abstract things वो होती हैं जिन्हें हम we cannot see, we cannot touch, we cannot hear, we cannot smell, not taste. 5 senses उन पे use नहीं कर पाते हैं. So which we can only think of, which we can only imagine, which we can only feel, okay, like emotions and all. So यहाँ लिखा है you should show respect to your teachers. Here आप एक एक वर्ड को ब्रेक करके देखेंगे तो you will understand. You तो pronoun हो गया. Should is a modal. या should is a modal verb. Then you have show. Show is a verb. Here respect यहाँ पे क्या है? Show verb है तो respect यहाँ पे abstract noun है. If I say I respect you, तो यहाँ respect मेरा verb होगा. It's an action word, right? But if I say I have a lot of respect for you, Here, respect is a noun. यहाँ पे respect एक ऐसी चीज है जो मेरे पास है तुम्हारे लिए. So that's why we say respect as your abstract noun. जिसमें मैंने आपको examples दिए थे, जैसे confident एक adjective है, लेकिन confidence एक abstract noun है. या motivate करना किसी को, I motivated, she motivated me. Motivate is a verb, but she gives me a lot of motivation. Then motivation is your abstract noun. Is that clear, Alina? Yes ma'am. Okay. तो मैम respect, right? हाँ जी, यहाँ पे respect is your abstract noun. Okay. Okay. All right. Next exercise. Anyone? Any confusion in the second exercise, Ria? As you said, second exercise में ही most of the mistakes were found in your test. Read the following sentences and identify the type of noun used in all of these sentences. There are 20 of them. Let's start from the first one. Kolkata is the capital of West Bengal. यहाँ पे एक तो noun है आपका कोलकाता और एक noun है West Bengal. दोनों के type क्या है? They are proper noun में. Yes, the Royal Bengal tiger is found in the Sundarbans. Now here also Sundarbans and Royal Bengal tiger, ये दोनों ही क्या है? हम specific चीजों की बात कर रहे हैं. Exactly. The proper noun. हाँ जी.
लाइक हियर यू हैव द आंसर्स, राइट? यहाँ पे भी ये दोनों यहाँ लिखा हुआ है, ये दोनों के दोनों प्रॉपर नाउन्स है, दिख रहा है हाईलाइटेड सबको? यस मैम। ओके नहीं मैंने जो आप अच्छा आपको मेरी पीपीटी दिख रही हो, क्योंकि मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ। Okay, now you must be seeing my screen, yes? यस मैम। Alright. तो मैंने ये खोला आपका टेस्ट दिख रहा है सबको। तो यहाँ पे सेकंड वाले में देखिए रिया एंड दीपिका, आप लोग भी देख लीजिए, ये दोनों आपके प्रॉपर नाउन्स हैं, ठीक है? थर्ड सेंटेंस क्या था आपका? The jury gave a unanimous verdict. The jury gave a unanimous verdict. यहाँ पे जूरी क्या है आपका? जूरी इज अ कलेक्शन, है ना? जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे कैबिनेट होता है या गवर्नमेंट होता है, ये सब आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं। जूरी इज अ कलेक्टिव नाउन। वर्डिक्ट क्या है? वर्डिक्ट क्या कोई ऐसी चीज है जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो? नहीं। वर्डिक्ट एक वर्डिक्ट है, जैसे कि उसने अपना वर्डिक्ट दिया, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सो दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट चीजें ऐसी होती हैं। सो रिया, इसमें आपका कौन सा गलत था? यू टेल मी। मैम 6, 9, 11, 13, 15, 17। ओके मैम 14 एंड 15 मुझे समझ में नहीं है। अच्छा ओके एक काम करते हैं, मेरे को बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। सो यू रीड द सेंटेंसेस जिसमें आपका आंसर गलत आया। ओके फर्स्ट वाला क्लियर हुआ, सेकंड क्लियर हुआ, थर्ड क्लियर हुआ। फोर्थ वाले में किसी को कोई कंफ्यूजन? लाफ्टर एंड हेल्थ, ये दो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। यस यस एवरीवन? यस मैम। Fifth, any confusion? Crowd is a collective noun. नो मैम। सिक्स्थ में आपको कंफ्यूजन हुआ, एलिफेंट एक कॉमन नाउन है, जैसे डॉग, कैट, राइट? एनिमल भी एक कॉमन नाउन है। इसमें मैम प्रॉपर में नहीं आता एलिफेंट। नहीं बचा, प्रॉपर में आपका जैसे अभी हम बिल्ली का एग्जांपल ले रहे थे ना, कैट, लूसी, तो कैट कॉमन नाउन था, लूसी प्रॉपर नाउन था। ऐसे ही अगर एलिफेंट को हम कोई नाम दे रहे हैं, स्पेसिफिक एलिफेंट की बात हो रही है, तब वो होगा प्रॉपर। अदरवाइज एक कॉमन एलिफेंट है तो इट्स अ कॉमन नाउन। 10 एलिफेंट साथ में खड़े हैं, दे आर ऑल कॉमन। ओके सेवेंथ, एनी कंफ्यूजन? मैम गंगा, रिवर, साबरमती, ये सब जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं, इनका हमें एक स्पेसिफिक नेम पता है। जब हम ये नाम बोलते हैं, हम सब एक ही चीज के बारे में सोचते हैं, इसीलिए हम उसे प्रॉपर कहते हैं। हम अलग अलग गंगा के बारे में नहीं सोचते। एट्थ, ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट चीज है ना? समझदारी, कॉमेडी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। और डे एक कॉमन चीज है, सोल्जर भी एक कॉमन चीज है। नाइन्थ में कोई कंफ्यूजन? यस मैम। फर्नीचर, हाउस, दे आर कॉमन नाउन्स। Is there any confusion in 10th? King Solomon is a proper noun, it's a name. In 11th, is there any confusion? यस मैम। What's the confusion, dear? मैम यही प्रॉब्लम थी कि हॉर्स प्रॉपर नाउन लिखा था मैंने। ओके चलो, नाउ इट्स आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि एनिमल्स या लोग, जैसे जैसे बॉय एक कॉमन नाउन है, वैसे ही हॉर्स भी एक कॉमन नाउन है। मतलब इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। 10 लाइन में खड़े होंगे लड़के तो सबको हम बॉय ही कहेंगे, राइट? तो कॉमन नाउन ना? इट्स अ कॉमन नाउन, यस। ओके ओके चलो शादी, मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें और कोई है कंफ्यूजन अभी भी? मैम 14th इनोसेंस। अभी मैंने क्या बोला? मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी, सैडनेस, हैप्पीनेस, ऐसे ही इनोसेंस। मैम यूके नियम 17 जो है वो मैंने प्रॉपर लिखा था। 17th का? यस मैम।
17th में क्या चीज प्रॉपर लगी आपको? एक सेकंड मैं देखती हूँ. 17th का सेंटेंस था आई बॉट zucchini फ्रॉम द मार्केट. जैसे आप बोलेंगे आई बॉट छोले भटूरे फ्रॉम द मार्केट, आई बॉट पाव भाजी फ्रॉम द मार्केट. ऐसे इफ यू से आई बॉट सम चिप्स फ्रॉम द मार्केट, zucchini फ्रॉम द मार्केट, नूडल्स फ्रॉम द मार्केट, ये सब चीजें एक प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत कॉमन प्रोडक्ट है. आपने भी वही खरीदा, मैंने भी वही खरीदा. इट्स सेम. Okay, so it's common. Okay, now let's move to the next exercise. I think exercise Yes. number 3. Gender of noun चेंज करने के लिए we use different rules जो हम लोगों ने याद किए थे. I think आपको सारे rules याद है. आप में से कौन है जो अभी ये rules मेरे को रिवाइज करा सकता है? बस एक एक लाइन में आपको सारे rules बताने हैं. What's the first rule, second rule? How do we change genders of nouns? I'll give you an example. एक तो होता है we just directly change the word, like man, woman, right? Boy, girl. What are the other rules? How we change? Very good, Ria. And E double S. Then the second one is we add E double S and we remove the last vowel. And the next one is we add E double S and we remove the last vowel as well as the last consonant. Yes or no? Yes, ma'am. All right. Then, a second. Ma'am, like mother-in-law, father-in-law. Yes, very good. All right. और एक और फादर इन लॉ मदर इन लॉ के जैसा ही होता है रिया, जिसमें आप अपना जेंडर लास्ट में चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर. Yes, ma'am. Yes. Master, head, mistress. Yes, absolutely correct. In exercise number 3, I don't think anybody would have any confusion now. ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा बिकॉज इसमें देखो आपको रूल तो पता लग गए, बट कई बार क्या होता है हमें नहीं पता कि हॉर्स का फीमेल क्या होगा, राइट? तो वो आपकी जनरल नॉलेज पे आ जाता है. अब आपको अपनी जनरल नॉलेज भी इक्वली स्ट्रॉन्ग करनी होगी. All right, moving forward to the next exercise. Exercise number 4. Identify the part of speech. अच्छा, part of speech identification सबसे ज्यादा important है इस पूरी exercise में. Did you all do all these 10 sentences correctly? Just tell me yes or no. No, दीपिका? Okay. तो एक गलत हुआ ना दीपिका आपका सिर्फ. ठीक है. मैम 3 गलत हुए. ओके, रिया का 3 गलत हुआ. ओके, सो इसमें कहाँ कहाँ कंफ्यूजन हुआ? मतलब देखो, पार्ट ऑफ स्पीच तो आइडेंटिफाई करना इज अ वेरी बेसिक थिंग. आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू इट करेक्टली. चलो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज नमिता इज नॉट कमिंग टुडे. द अंडरलाइन वर्ड इज नमिता. ये तो अब सबको सबने क्लियर किया होगा कि नाउन है. यस और नो? Yes, ma'am. Right. Good. In the second one, my mom will be leaving to Bangalore tomorrow. Here the underlined terms are will be leaving and tomorrow. So यहाँ leaving क्या है? Will be leaving क्या है? Verb phrase है. It's a verb. Well, Yes, it's a verb phrase. क्योंकि ये 2-3 वर्ड से जब मिलके एक कुछ वर्ड का कलेक्शन होता है उसको हम verb phrase बोलते हैं. Phrase. For example, I went to the market. यहाँ पे अगर मैं खाली बोलूँ to the market तो ये एक phrase हो जाएगा. Yes or no? Yes, ma'am. तो वैसे ही will be leaving, it's a verb phrase. So basically it's a verb. Leaving. Tomorrow. What is tomorrow? अभी क्योंकि ये verb को describe कर रहा है, like when will I be leaving, right? So the words that describe or give any kind give any kind of information about the verb, they are called adverbs. Perfect. Number 3 is the teacher asked the students to stand. What is students here? Common, ma'am. नहीं. Proper. No, the teacher asked the students to stand. Students क्या है यहाँ पे? मैं क्या हूँ? मैं teacher हूँ. Then which noun am I? Am? First of all, I'm a noun, right? I'm a noun. Yes, ma'am. Now.
Yes, it's a common noun. So why did you say adjective? Adjective तो ये in any case नहीं होगा, dear. Adjectives are the words that give description about the nouns. It itself is a noun. Okay, clear or any confusion right now? No, ma'am, clear. Perfect. Number 4 is he is my brother. What is my? Pronoun. Yes, absolutely correct. In this, did you have any confusion, girls? No, ma'am. Okay, cool. Number 5 is there is a cat under the table. There is a cat under the table. Preposition. Under preposition. Perfect. क्यों? क्योंकि ये position बता रहा है किसी noun की. Number 6, the clothes did not dry as it was raining all night. Now these are conjunctions. You might have got confused here because we haven't reached conjunctions yet. But because, as, since, these are all whereas, therefore, but, these are all your conjunctions. Means they connect to different words or groups of words. Clear हुआ? Yes, ma'am. See, conjunctions क्या होते हैं? सबको clear हुआ? Yes, ma'am. Okay, the words that connect, that join two words or two groups of words. Okay, Sheena and her sister dance well. यहाँ पे भी and क्या है? वो शीना और उसकी बहन को connect कर रहा है. So it is a conjunction. And. Well, Adverb, ma'am. yes, well is an adverb. Perfect, Alina. Because it is explaining how did the sister dance. In what way did she dance? Did she dance well or did she dance bad? Number 8 is I'm wearing a green dress for the party. What is green here? Ma'am, adjective. Perfect. It's an adjective. Why? Because it is describing what? Dress. Dress, and dress is a noun. So the words that describe nouns are called adjectives. Oh, that's really sad. What is oh? Interjection. Perfect. It is interjection. She is coming with me. What is with? Preposition. Preposition. Perfect. So exercise 4 complete. जहाँ भी नंबर कट हुए थे, I hope now it's clear. Number 5, exercise number 5 was very easy. I think it's like a story. Cinderella की story सबने सुनी है, सबको knowledge है, इसीलिए मैंने ये रखी है, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास एक general awareness already है, right? Now you just have to do the thing that you had to do was you had to select the correct words from the box and then fill them in the blanks to make complete paragraph. इसमें कुछ गलती हुआ? Ma'am, 6 and 7. अच्छा, एक्सरसाइज Ma'am, ऊपर नीचे कर आपको पर समझ आ गया अपनी गलती? Yes, ma'am. चलो समझ आ गई ना गलती, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है, आगे बढ़े. No, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Exercise number 6 was you had to fill the blanks with the simple present form of verbs given in the brackets. मतलब आपको verb दिया हुआ है bracket में next to all the sentences. All you need to do was that you needed to change the verb in the simple present tense. Ma'am, ES या ES ना? Yes, you're right. So tell me इसमें कोई गलत हुआ sentence किसी का? No, ma'am. Very good, Alina. It's a big thing. आपने किया है ये एक्सरसाइज या नहीं किया था? नहीं मैम, 6 में किया था, 7 से मैं 7 8 नहीं किया था. चलो 7 8 अभी के अभी कर लो. 6th, okay, 6th में दीपिका एंड रिया. अच्छा, वो मधुलिका एंड रुचिका नहीं आए हैं क्लास में आज? Yes, ma'am. मैंने लास्ट वो रॉन्ग थे, मैंने मूव में मूव्स लगा दिया था और दोनों में एस लगाया था लास्ट दो में. अच्छा, okay. So did you understand now that why the S won't come? Because the clouds are plural. Clouds. It's not a cloud. The fluffy cloud. Cloud hota to moves hota. The fluffy cloud moves around. Since this is clouds and it is plural, you are not going to add S. You'll say the fluffy clouds move around. For example, the student moves around. The students move around. It's like that. Move. Yes, move. The और dog, लास्ट में मम्मी मैम डार्क.
द डॉग्स में भी बार्क आएगा लीना, बिकॉज डॉग्स प्लूरल नाउन है, इट्स नॉट अ सिंगुलर थिंग. ओके ठीक है. मैम टेंथ सो आपको अगर याद इतना समझ में आ गया ना रूल सिंपल प्रेजेंट टेंस का गर्ल्स, दैट वी एड दैट एक्स्ट्रा ses or ies to the end of the verb when we are talking about just third person singular. It can be he, it can be she, it can be it. समझ आया? मैम 10th और 17th. Okay, 17th and 10th 10th. There dash the topper of our class. So यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? टॉपर के बारे में. टॉपर कौन है? कितने लोग हैं? एक या एक से ज्यादा? मैम बताया नहीं है. The topper, it's one person, right? Ria. यस मैम. So for one person, do we add ses? मैम ना एस लगता है ना यस लगता है. Yes लगता है ना. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन है, एक है, तो हम लास्ट में एस लगाएंगे तो कम के आगे कम्स हो जाएगा. Yes or no? यस मैम. हाँ, तो 10th समझ में आया कि क्यों हमने एस लगाया? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन ऑफ आवर स्कूल, जो टॉपर है बच्चा, बस वही एक. ओके मैम. Alright. 17th. The teacher dashed the parents today. Teacher, again, is it singular, third person or plural? मैम सिंगुलर. Singular. तो singular के आगे again वही meets होगा ना. अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे, इसमें मैं समझ सकती हूँ that it can be past simple as well, like the teacher met the students, right? The parents today, the teacher met the parents today. वो भी सही होता if you're talking about, if you in Hindi you are saying कि teacher आज parents से मिले थे, ठीक है, मिला था या मिली थी. तो यहाँ पे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस इसलिए बोलेंगे द टीचर मीट्स द पेरेंट्स टुडे, बिकॉज इट कैन बी अ रेगुलर थिंग, अ रेगुलर एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल अगर आज की क्लास मुझे आपको ये बोलना था विल स्टार्ट एट 6 PM, राइट, फॉर यू, देन आई कुड हैव सेड द क्लास स्टार्ट्स एट 6 PM टुडे, instead of saying the class will start at 6 PM today. So it's just like that. Means it can be a regular activity like PTMs. So the teacher meets the parents in the PTM today. Is that clear? ओके मैम. यहाँ पे अच्छा, यहाँ अगर आपने met भी लिखा है ना, then also it is correct. लेकिन यहाँ नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन में क्लियरली दिया हुआ है you were supposed to change the verb forms to make the sentence in the present simple tense. That is why you're not going to get the mark for this one. If you have written met. Otherwise, in general English, if you say the teacher met the parents today, it is perfectly fine. समझ आया? यस मैम. Okay, shall we move forward to the next exercise now? यस Everybody, everyone, give me a thumbs up if exercise number 6 is clear. यस मैम. All right, यस मैम डन. absolutely wonderful. Now, give a read on this exercise number 7. Change the paragraph into the simple present tense by changing the verb forms. Now, यहाँ पे एक paragraph लिखा हुआ है आपके आगे. It is not in the present simple tense right now, but you were supposed to change it. How are you going to change it? आपको किसी भी एक sentence को दूसरे मैम sentence ओके change करना है, ओके उसका इसकी verb change करेंगे. उसका verb change करेंगे आप. Yes or no? यस मैम मैम. मैंने ये वाली एक्सरसाइज चेक नहीं की, मुझे भूल जाती है. आप अभी करो और मुझे छोटा सा 4 लाइन का पैराग्राफ है, इसको अभी करके बताओ. हाउ डू यू चेंज दिस एंटायर पैराग्राफ इनटू द सिंपल प्रेजेंट टेंस बाय चेंजिंग द वर्ब फॉर्म्स. मैम डिड यू ड्रिंक यस्टरडे, फर्स्ट वाला. स्टार्टिंग से Sam's mother got up at 6 o'clock in the morning. Yes, Sam's mother got up at 6 o'clock in the morning. मैम सिंपल इसमें बनाना है सिंपल प्रेजेंट. इसको देखो ना, क्वेश्चन में पढ़ो, ये देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो. गो थ्रू द गिवन पैसेज एंड चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब्स इनटू द सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके लिए आपको क्या करना होगा? सारे वर्ब्स को सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा.
अभी ये Yes, ma'am, पूरा मैंने की पैराग्राफ, थी वो। हाँ, तो यहाँ पे भी पैराग्राफ में रीड कर देती हूँ एक बार. सैम्स मदर गॉट अप एट 6. अभी मैं देखो, सैम्स मदर गॉट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. सैम की मम्मी उठी थी 6 बजे इन द मॉर्निंग. इसको आपको क्या करना है, सैम की मदर उठती है 6 बजे इन द मॉर्निंग. ये एक्सरसाइजेस, ये जो एक्सरसाइज है ना गाइज, ये वाली, ये आप अपने घर पे अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे ना, आई लाइक ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस यू, आपकी टेंसेस की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी. प्रैक्टिस इतनी ज्यादा अमेजिंग हो जाएगी दैट यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट. इसमें क्या है ना, आपको पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस में कन्वर्ट करोगे तो भी लॉजिक है, पास्ट सिंपल में बोलोगे तो भी लॉजिक है. द ओनली डिफरेंस इज पास्ट सिंपल में हम बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ था, बट प्रेजेंट सिंपल में हम बोलते हैं ऐसा होता है. समझ आ रहा है डिफरेंस आपको सिंपल टेंसेस में? Yes, ma'am. मैम, हाँ, बोलो। हाँ जी. मैम, Sam's mother get up at 6 o'clock in the morning. Now wait here, Ria, wait here. Are you sure आपने फर्स्ट लाइन सही बोली है? Repeat that please. सिर्फ इतना. Sam's mother अभी हमने एक्सरसाइज में प्रैक्टिस किया है. सैम की मम्मी की बात हो रही है. थर्ड पर्सन प्लूरल है, सिंगुलर है? मैम singular. तो फिर गेट आएगा. आपने बोला सैम्स मदर गेट्स अप, ठीक है, करेक्ट. सैम्स मदर गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. मूव फॉरवर्ड रिया. After that, she gets fresh and takes a shower. Very good. After that she gets fresh and takes a shower. Then To come and take ना. हाँ जी, took का takes हो जाएगा. takes, not take, takes, Takes. because we are talking about she, third person singular. So got हो जाएगा gets and took हो जाएगा takes. Next. Then she prepares breakfast for all of them. Very good. Here prepared will change to prepares. Then she prepared breakfast for all of them का मतलब हुआ कि उन्होंने सबके लिए breakfast prepare किया, उन्होंने ब्रेकफास्ट बनाया. लेकिन आपको बोलना है then she prepares breakfast for all of them, मतलब बनाती हैं regularly. Next. She works very hard to sustain the family. Very good. She works very hard. Again worked का works हो जाएगा. Next. Every day she goes down to the market. हाँ, very good. Every day went का हो जाएगा goes. Very good, Riya. And sell fruits and vegetables. And Sell. अभी सेल आएगा ना, तो गो नहीं बोला आपने. Sell. सेल्स. वेरी गुड. ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको बोलते वक्त समझ में आएंगी कि यहाँ आपने गो का गोज बोल दिया लेकिन वहां सेल का सेल्स नहीं बोला, जबकि इसका मतलब है अगर आपने एक जगह सही बोला दैट मीन्स यू समवेयर नो द रूल, आपको रूल पता है दिमाग में, फिर भी वो एकदम इंस्टेंटली आप वो प्रोसेस नहीं कर पाया आपका ब्रेन एंड द आंसर वेंट रॉन्ग. सो ये वाली एक्सरसाइज प्रैक्टिस किया करो. कोई भी चीज पढ़ रहे हो उसको चेंज करना शुरू कर दो, दूसरे टेंस में समझना शुरू कर दो कैसे वर्ड्स चेंज हो रहे हैं. नेक्स्ट. दिस वे. This way she earns money for the family and sends her children to school. वेरी गुड, एब्सोल्युटली वंडरफुल, परफेक्ट. सो बाकी लोगों को समझ में आया? अदर्स? Yes ma'am. लास्ट में मैम उन्होंने क्या वो किया लास्ट सेंटेंस में. मैं बोलती हूँ. दिस वे मतलब इस तरह से. शी अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, इस तरीके से वो फैमिली के लिए पैसे कमाती हैं. एंड सेंड्स हर चिल्ड्रन टू स्कूल, और अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं. यहाँ पे लिखा था इस तरीके से उन्होंने फैमिली के लिए पैसा कमाया और बच्चों को स्कूल भेजा, लेकिन हमने पास्ट सिंपल को चेंज कर दिया प्रेजेंट सिंपल में कि वो कमाती हैं और स्टूडेंट्स को अपने बच्चों को भेजती हैं. सो दैट इज वाई सेंट का हो गया सेंड्स और अर्न का हो गया अर्न्स. समझ आ गया? शैल वी मूव फॉरवर्ड? Okay, let's move ahead. Now the last exercise was 8th exercise which was simple verb tense quiz. ये तो सिर्फ 4 थे और बहुत इजी थे, इसमें भी कोई गलत हुआ? No, ma'am. No? Perfect. How many cups of tea dash yesterday? क्योंकि yesterday की बात हो रही है तो कौन सा simple tense लगेगा? Did you drink? Did you drunk आएगा? Drink.
ड्रिंक, वेरी गुड, द फर्स्ट वन, डिड यू ड्रिंक। क्यों आपने ड्रिंक क्यों लगाया? ड्रिंक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, फर्स्ट फॉर्म तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगाते हैं। मैम बीट के साथ हमेशा फर्स्ट आता है। वेरी गुड, परफेक्ट, समझ आ गया। शी शैल डैश योर आइसक्रीम parlor soon because she dash ice cream. मैम विजिट लाइक्स। Okay. She shall visit your ice cream parlor soon because she likes ice cream. Very good. Correct. Number 3 is Shakespeare dash dramas that are appealing to the people of all ages. रोट। Wrote. Why wrote? क्योंकि शेक्सपियर अब नहीं रहे, यस मैम। उन्होंने पास में लिखी थी। Okay. Tara dash what you meant. शायद डजंट अंडरस्टैंड। नहीं, तारा। हाँ, तारा doesn't understand. Please explain it to her again. चलो, हमने सारा टेस्ट रिवाइज कर लिया, ठीक है? यस मैम। ओके। All right. So I think there is no more confusion in nouns and the simple present tense and the simple past tense. Yes. तो हम आगे और टेंसेस रिवाइज करते हैं इस चैप्टर में, इन द प्रोनाउन चैप्टर. तो वी विल बी लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग सम प्रोनाउंस एंड ऑल द सेंटेंसेस दैट वी आर गोइंग टू मेक आर गोइंग टू बी इन द कंटिन्यूअस टेंसेस. अच्छा, फ्यूचर सिंपल हम मॉडल वर्ब्स के टाइम पे करेंगे. जब मैं आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ाऊंगी तब मैं आपको फ्यूचर टेंस हम सिंपल टेंस करेंगे, because future simple tense में we are going to use all the modal verbs like will, would, shall, should, etc. So basically आपको हमने present simple tense और past simple tense तो समझ लिया, लेकिन future simple tense में आपको कुछ नहीं करना है. You just have to make sure that आप यहाँ पे अपना पहले subject लिखेंगे. For example, I, you, we, they, he, she, it, Seema, Ria, Tina, whatever. इसमें किसमें आप समझा? Future simple. Because मैम फ्यूचर में तो सेम ऐसे ही रहते हैं, ओनली विल लगता है ना. आई विल गो. Yes. So then after subject what will you use? यहाँ पे आएगा आपका will, would, shall, should, whatever you want to use. Okay. And वो होता है आपका helping verb. जैसे will. इसका मैंने आप लोगों को बताया था. If you remember, if you are 100% sure, we use will. Yes or no? ऐसा बताया था. If you are less than 100% sure, we use would. नहीं बताया था या बताया था? बोलो. मैम नहीं बताया. एक सेकेंड. नहीं बताया मैम, ये हमने किया ही नहीं. ओके. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस अब आएगा आपका मेन वर्ब. विच फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वेरी गुड. एंड देन कम्स योर ऑब्जेक्ट. नाउ इसको फॉलो करके कैन यू मेक अ सेंटेंस? आई विल गो. थोड़ा और लॉजिकल सेंटेंस बनाओ. आई विल गो टू मार्केट कब? व्हेन? I will come tomorrow. Yes, I'll come tomorrow. I'll go to market now. Okay. She'll come tomorrow. Okay. ठीक है. अच्छा, इन सेंटेंसेस में हम कुछ भी लगा सकते हैं. will लगा सकते हैं, हम would लगा सकते हैं, हम may लगा सकते हैं, हम might लगा सकते हैं. Yes or no? मैं बट मैं वुड विल या मैं तो या शायद मैं कर सकती हूँ. आई में. Yes, yes. और माइट. मैं मेरे को बताने दो एक मिनट. ओके. will, हम will कब यूज करेंगे गर्ल्स? when we are 100% sure. when we are 100% sure. ये हमारी श्योरिटी का लेवल की बात हो रही है. फ्यूचर में अगर हम किसी एक्शन को लेके 100% श्योर है कि ये होगा ही होगा, सारी मतलब we are sure that it will happen, preparation not done, etc etc, तो हम बोलेंगे I will go to market now or she will come tomorrow. मतलब उसने कमिट किया हुआ है, she will definitely come tomorrow. वहीं पे if we are not 100% sure but we are like more than 50% sure,
समझ लिया, ध्यान से सुनना है। या इफ यू आर मोर देन 50, मतलब 50% से ज्यादा श्योर है लेकिन लेस देन 100% श्योर है, तो हम लोग वुड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लाइक 99% श्योर कि ऐसा होगा लेकिन हाँ 1% चांस है कि ऐसा ना हो पाए, सो आई से शी वुड कम टुमारो। इस केस में हम मैम मैं फाइनल शायद एक पॉइंट हो सकता है कि मैं अटेंड नहीं करूँ क्लास, एग्जैक्टली आई वुड टू नॉट अटेंड। I would not attend the class or I would attend the class tomorrow. So इसका मतलब है कि हाँ मैं श्योर हूँ लेकिन मेरे पास अभी मतलब मैं 100% श्योर नहीं हूँ, ठीक है। ओके, ये मे तो इजी है। मे इज व्हेन यू आर 50% श्योर एंड 50% अनश्योर, मीन्स शी मे कम टुमारो, आई मे गो टू द मार्केट नाउ, इट मे रेन, राइट? यस और नो? यस मैम। माइट का कौन बताएगा? नो आइडिया। Might is less than 50% sure. इसमें आप 50% भी श्योर नहीं हो कि ऐसा होगा। This is the very least, very negative surety. Means I'm least sure about the future action. So I'll say I might go to the market now. मतलब बहुत high chances हैं that I will not go. बट देयर इज 1% चांस शायद मैं चली जाऊं, मेरा मूड चेंज हो जाए या मौसम अच्छा हो जाए। सो फॉर एग्जाम्पल इट माइट रेन टुडे, इट मीन्स कि बिल्कुल भी चांसेस नहीं लग रहे कि बारिश होगी लेकिन 1% हो भी सकती है। सो यहाँ पे ये आपको याद रखना होगा। इन फ्यूचर सिंपल टेंस हमारा पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल की तरह बिल्कुल सिंपल सेंटेंस रहता है कि पास्ट सिंपल में आप बोलते हो मैंने ऐसा किया था, प्रेजेंट सिंपल में आप बोलते हो मैं ऐसा करता हूं, और फ्यूचर सिंपल में आप बोलोगे मैं ऐसा करूंगा। अब करने का कितना श्योरिटी है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है आपके माइंड में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि विच मॉडल वर्ब आर यू गोइंग टू यूज। ओके, फ्रॉम दिस 4 मॉडल वर्ब्स। इफ मैम एक शेर भी आता है ना शायद, शेर आता है मतलब व्हील शेर। शैल, यस, एक्चुअली जो शैल होता है, वेरी गुड अलीना, इट हैज बिकम आउटडेटेड, वो अब यूज बहुत ही कम किया जाता है। शैल इज यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर विल। विल या शैल आप दोनों बोल सकते हैं सेंटेंसेस में। द ओनली डिफरेंस इज, मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ, जो विल होता है ना, इट इज यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल आई विल, यू विल, दे विल, ही विल, शी विल, इट विल। बट जो शैल है ना, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यार, हम वो सिंगुलर के लिए था। okay, now shall we use for no. Yes guys, okay, so समझ आया आप लोगों को will shall का डिफरेंस? shall can be used for first person like I shall go, we shall go, क्योंकि हम जो श्योरिटी देंगे 100% श्योरिटी देंगे वो हम अपने लिए दे सकते हैं ना, हम किसी और के लिए तो नहीं दे सकते। yes or no everyone? यस मैम। ओके, अभी आपको इन चारों पांचों मॉडल वर्ब्स में कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, अगर है तो मुझे अभी बता दो। चलो तो जल्दी से एक एक सेंटेंस बनाएंगे। आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक लाइक 4 to 5 sentences and that should be real life sentences. You have to tell me something that you will do, that you would do, or that will happen or would happen or may happen, etc. फोर मैम, विल, वुड, मैं, माइट, 4 का बनाना है। Alina, but you have to make complete sentences. 4 मैम। What 4? विल, वुड, मैं, माइट, 4 का, चारों का मैम बनाना। यस यस, चारों का बनाना है आपको। मुझे रियल लाइफ में बताना है कि आप ऐसा फ्यूचर में क्या करने वाले हो और उसके लिए आप कितना श्योर हो। ओके।
Ma'am, I will go to gym in every night in night. अलीना और भी तो बनाओ. और मैम I would shopping in weekend. नहीं अलीना, वर्ब नहीं खाना. मॉडल वर्ब लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, लेकिन उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगानी है, मेन वर्ब भी लगाना है ना, एक्शन वर्ब. Okay. रिया, तब तक आप बनाओ. Ma'am, I would shopping in weekend with my husband. I would go. अलीना अगेन, आप वो बच्चा वर्ब नहीं लगाया आपने, मेन वर्ब. आपने बोला आई वुड शॉपिंग विद माय हस्बैंड, आई वुड डैश शॉपिंग विद माय हस्बैंड, आई वुड गो शॉपिंग विद माय हस्बैंड. Go. ओके, I will go shopping with my husband in weekend, ma'am. Weekend in on weekend. Very good. on weekend. Okay. Good. More sentences, please, with different verbs. क्या बोल रही हो? Ma'am, I may make biryani Very good. Very good. tomorrow, ma'am. So Very in good. tomorrow. नहीं, इन नहीं आएगा, आप सीधा बोलो आई मे कुक बिरयानी टुमारो. Okay. मैं बना सकती हूँ कल बिरयानी, मतलब शायद मैं बनाऊंगी, शायद मैं बनाऊंगी, राइट. आई एम 50%. चलो, गुड. तो अभी क्या करना है आपको, घर पे जैसे प्रैक्टिस आप लोग करोगे, ये फ्यूचर सिंपल, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, ये चीजों को आपको छोड़ना नहीं है, बिकॉज जैसे ही हम प्रोनाउन चैप्टर शुरू करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंटिन्यूअस टेंसेस, प्रोग्रेसिव टेंसेस, जिसमें आपका पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस हम खत्म करेंगे, राइट. दिस इज हाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न. अगर मैं ऐसे करती, पहले हम प्रेजेंट सिंपल करते, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस करते, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, तो आप एक प्रेजेंट फैमिली में ही रह जाते, और फिर हम पास्ट में जाते तो सारा प्रेजेंट भूल जाते. बट लर्निंग और प्रैक्टिसिंग टेंसेस दिस वे इज गोइंग टू हेल्प यू बेटर. आर यू गेटिंग इट? कैसे कि आप सारे सिंपल वर्ब टेंसेस को एक साथ प्रैक्टिस करो, सारे कंटिन्यूअस टेंसेस को एक साथ, मतलब आपका टेंस वही है, आपको दिमाग पे प्रेशर नहीं लगाना ज्यादा. एक ही टेंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सिंपल टेंस, उसका सिर्फ 3 अलग अलग टाइम चेंज हो रहा है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो आपको घर पे भी ऐसे ही करना है. यू हैव टू टॉक टू पीपल अराउंड यू अबाउट सिंपल थिंग्स, about simple actions that happened, happens or will happen. क्लियर हुआ? तो इससे आपको ये पता लगेगा that most like 80% इंग्लिश आपको आ गई. 80% बिकॉज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट हो, ये सब चीजें जो परफेक्ट टेंसेस हैं, ये हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, राइट. बट जो सिंपल टेंसेस हैं, ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मोस्टली हम यही यूज करते हैं. So please practice these sentences at home. मैम एक माइट का एक सेंटेंस मैम करवाए ना. हाँ जी, बनाए. आप मैम हेल्प करो. मैं हेल्प करूं तो आप अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कोई चीज जो आपको लगता है कि होगी, लेकिन आप बहुत लीस्ट श्योर हो उसके बारे में. मैं इंडिया जाना. हाँ, तो आप कैसे बोलोगे? I might not means I'm not sure. I'm not go sure. to India. Yeah, very good. तो आप क्या बोलेंगे? I might go to India. Okay. I might go to India someday, है ना? Okay. Yes, या someday की जगह आपको कोई month बोलना है, कोई year बोलना है, कोई day बोलना है, तब आप next month. Next month. I might go to India next month. Means I'm least sure about it. Good, Alina. I think you have understood the uses of these modal verbs and the main verb forms to make future simple sentences, right? Yes, ma'am. Good. Ria, now I want to hear some sentences from you. बहुत देर से सोच रही हूँ. Ma'am, I will definitely go to abroad. Go abroad, not to. Good. I will definitely go abroad. Then I would go to college tomorrow. I would go to college tomorrow. Very good. I may attend class tomorrow.
I may attend the class. Very good. I might do this exercise tomorrow. I might do this exercise tomorrow. Very good. Okay. One request I want to make to all of you. I understand हम लोग जब नया नया सीख रहे होते हैं तो हम प्रेफर करते हैं हमारे माइंड में वही सिंपल सिंपल वर्ब्स आते हैं जैसे go, come, right? Yes. But I want you all to just explore the verbs that are there in the world. It has got no limit. आप ज्यादा से ज्यादा verbs को practice करें जैसे कि कुछ ऐसे verbs जो आपको actual में आप और sentences बनाने में use कर सकते हैं जैसे distribute या फिर attend जैसे आपने बनाया अभी I may attend the class. So ऐसे different आप verbs try करिए. First of all क्या करना है आपको ना make a list of 10 to 20 verbs, all different verbs. ठीक है, समझ आया? अभी सिंपल वर्ब टेंसेस में पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हमें कौन कौन सी वर्ब फॉर्म्स पे फोकस करना होगा? फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म. Yes, ma'am. फर्स्ट फॉर्म फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिंपल एंड सेकंड फॉर्म फॉर द पास्ट सिंपल. एंड फर्स्ट फॉर्म हमारी पास्ट सिंपल नेगेटिव में भी लगती है विद डिड या क्वेश्चन वर्ड पूछते वक्त, राइट? तो अब आपने 10 से 20 वर्ब्स की लिस्ट बना ली. जब आपके पास इतने सारे वर्ब्स आ गए अब आपको स्टोरीज क्रिएट करना शुरू करना है. जैसे हमने वो पैसेज छोटा सा पढ़ा 4 लाइन का एंड देन वी चेंज द पैसेज, द कन्वर्टेड ऑल द वर्ब्स इन द डिफरेंट फॉर्म टू मेक द पैसेज फ्रॉम पास्ट सिंपल टू प्रेजेंट सिंपल, राइट? सो यू आल्सो हैव टू मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस इन अ कॉन्वर्सेशनल मैनर. एक लाइन वन लाइनर से हम स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग करना, उसके बाद थोड़ा लेवल अप करेंगे, हम छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाएंगे, फिर थोड़ा लेवल अप करेंगे, थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी वगैरह बनाएंगे, डायलॉग फॉर्म्स उसमें डालेंगे. मतलब आप जितना ज्यादा एडवांस होना चाहते हो टेंसेस में आपको उतना ही अपनी प्रैक्टिस को लेवल अप करते रहना है. सो आज घर पे आप लोग क्या करोगे इस क्लास के बाद ही यू विल मेक few sentences, logical sentences with subject, verb and object, everything. Then you have to level up yourself and make a paragraph about something. मतलब आपने कोई भी एक product उठा लिया, for example your last weekend, या फिर आपने उठा for past simple tense, या आपने उठा लिया water bottle के ऊपर आपको बोलना है, so you can use present simple sentences for this. या फिर my tomorrow's plan, then again it is going to practice your future simple tense. So इन ऐसे कोई टॉपिक उठा लिया उस पे आपने 5 लाइनें लिखनी है, सिर्फ छोटा सा पैराग्राफ बनाना है, ठीक है? 5 सेंटेंस में मैम. हाँ, इसको अब जब आप सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे तो आप 1 2 3 4 5 6 करके अलग अलग वर्ब्स अलग अलग सेंटेंसेस में डालेंगे. बट जब आप पैराग्राफ प्रैक्टिस करोगे तो आपको 1 2 3 4 ऐसे नहीं करना है. आपको वो सारे सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ लॉजिकली कनेक्टेड होने चाहिए. जैसे हमने सिंड्रेला वाला पूरा पैराग्राफ किया था, यस और नो? Yes, ma'am. या सैम्स मदर वाला पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा तो वो पूरे पैराग्राफ फॉर्म में ही होना चाहिए. इट शुड बी कनेक्टेड, ऑल द सेंटेंसेस शुड बी कनेक्टेड. एंड देन उसके बाद highest level is going to be when you are ready to write a short story which should have, listen carefully, the story should have क्या होगा उसमें, all the tenses, simple present, past present simple and your future simple. उसमें क्या करोगे, शॉर्ट स्टोरीज कैसी होती हैं जब हम पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों की स्टोरीज होती हैं, यस और नो? उसमें कुछ डायलॉग्स भी होते हैं कि फॉर एग्जांपल अलीना सेड, डबल इन्वर्टेड कॉमास, उसके अंदर लिखा होता है व्हाट डिड यू डू यस्टरडे. तो आप स्टोरी लिख रहे हो किसी टेंस में, डायलॉग आ रहा है पास्ट टेंस में, या व्हाट विल यू डू टुमारो फ्यूचर सिंपल में. तो ऐसे ना शॉर्ट स्टोरी को लिखना है आपको खुद से, पहले थोड़ी पढ़नी है फिर थोड़ा अपने आप से लिखनी है. एंड इन द नेक्स्ट क्लास यू ऑल आर गोइंग टू नरेट अ स्टोरी. और नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कल, ओके? सो टुमारो यू आर गोइंग टू नरेट अ स्टोरी. Which time tomorrow? सेम टाइम डियर. Same time. Okay, ma'am. ठीक है? Is it possible? Tomorrow is it possible for you to do like 8 to 9 class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'll possible. 8 to 9 PM हो जाएगा, ठीक है? तो 8 to 9 वाले बैच में हम लोग सबका शॉर्ट स्टोरी का सेशन करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद प्रोनाउंस आल्सो. Okay, ma'am. Ma'am, and call and your
या आई एम एंडिंग द कॉल, जस्ट अ मिनट. नाउ समझ आया ना क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रैक्टिस विद योर सिंपल सेंटेंसेस, देन यू हैव टू प्रैक्टिस विद पैराग्राफ्स, एंड फाइनली अ शॉर्ट स्टोरी.